Good morning students, how are you? Hope so you are well and safe at home. So today on 13th of July, on Monday, class 11 chemistry, we have the new topic, that is Mendeleev's periodic classification. Mendeleev's periodic classification. After Dauvergne and Newland, the third most valid periodic table was Lothar-Meyer. Lothar-Meyer periodic table is based on atomic volume and other properties. But the Mendeleev's periodic table is the most valid theory, most valid classification आफ्टर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. रिसेंट में जो हम डिस्कशन करते हैं, रिसेंट में जो हम स्टडी करते हैं, वो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है. और उस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अलावा अगर सेकंड नंबर पे हम बात करें तो मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है. डिमिट्री मेंडलीव साइंटिस्ट ने अपना एक जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिया. और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स बनाए. कितने वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं? उन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करें. उनकी जो स्टार्टिंग पीरियोडिक टेबल थी उसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, एंड ईच वर्टिकल कॉलम रिप्रेजेंट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही अरेंज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. Increasing order of atomic mass. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 8 vertical columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And these vertical columns are known as the groups. Mendeleev's ने इनको groups कहा. And each vertical columns have the number of elements and each group have the same chemical properties. Clear? And the horizontal rows, there are 6 horizontal rows. One, 2, 3, 4, 5, 6, 6 horizontal rows. So vertical columns are known as the groups, and horizontal rows that time known as series. But now these are denoted as the periods. These are denoted as periods. Okay. So these vertical columns represent groups and denoted by Roman number 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 and 8. So there are 8 vertical columns and denoted by the Roman numbers 1 to 8. Clear? Each vertical column have the 2 subgroups. Means there are 2 subgroups. One A and B, second A and B, and so on. Rather than 8th group. Okay. So there is an exception of the in 8th group, there is no AB column is there, but other than 8, A2, 1 to 8 all have the 2 subgroups A and B, A and B and A and B. Now these are the periods 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Clear? At the time of Mendeleev's classification, 63 known elements were there. And he arranged all the elements in this table. 63 elements were known that time, and each element is present in this table. And each element represents to increasing order of atomic mass. Hydrogen,
lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. I think anyone is doing it. Yes. Okay. Potassium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. In 8th group, this is the transition group. 8th group is transition group. There is a transition. There are transition metals, and 9 transition metals were placed in 8th column. 9 transition elements placed in 8th column. Clear? Now, when he arranged all the elements in increasing order of atomic mass, he says that in each vertical column, there is a similar similar chemical properties, and that chemical properties belongs to the hydride nature and belongs to oxide nature. Means in each vertical column, every element denoted to the same formula for hydride and same formula for oxide. For example, in the first vertical column, all elements represent to R2O type oxide. Clear? In the second one, RO type. Third one, R2O3. Next one, in the fourth one, RO2. In the fifth one, R2O5. In the sixth, RO3. In the seventh one, R2O7. And the last is RO4. Clear? Now, if we take the hydride nature, so the first one represent to RH type, second RH2, third RH3, fourth one RH4, third one again RH3, RH2, and RH type of the hydrides. For example, if we take one by one example from each, so potassium represent to the K2O, sodium also represent to the Na2O. So these elements represent to the oxides nature. Formula R2 means that may be Na2O, that may be K2O, that may be H2O, and the hydride nature is represent to NaH, KH, etc. If we take the example of this one, fourth one, CO2 and CH4, oxide nature and the hydride nature. In case of the aluminium, Al2O3, clear, and AlH3. AlH3. No, there is a BH3. BH3 exists in dimer condition, that is B2S6. So boron trihydrate will be formed when boron is treated with hydride. It's formed BH3. Clear? Now, in the same way, chlorine has a tendency to form HCl type compound. Clear? And chlorine has a tendency to form Cl2O7 type oxide. Clear? So there are different oxide and hydride for a particular for this periodic table, and each vertical column have the specified oxide and specified hydride. Clear? Now, so there are some drawbacks and there are some achievement in this table, that is modern Mendeleev's periodic table. So Mendeleev's periodic table have the achievement. The first achievement is there are some gaps in this periodic table. When he arranged all these elements with increasing order of atomic masses, he predicted that some of the elements
will be discovered in the future. Some elements will be discovered in future. Just like in case of the aluminum, below the aluminum there is a gap, क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आना था उसका एटॉमिक मास रिजेंबल नहीं कर रहा था कि वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो रिजेंबल नहीं हो रही थी किससे, सेम एलिमेंट के साथ में। किससे रिजेंबल हो रही थी, उसके बाद में। तो एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे गैप आया, सिलिकॉन के जस्ट नीचे गैप आया, लेकिन उन्होंने गैप को गैप में नहीं रहने दिया, उन्होंने गैप में अपनी तरफ से एक नेम रखा उस एलिमेंट का जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होना था, और उसके एटॉमिक मास को प्रेडिक्ट किया। और प्रेडिक्ट किया किसे, उसकी डेंसिटी को प्रेडिक्ट किया, उसके ऑक्साइड्स को प्रेडिक्ट किया, और बाद में ये देखा गया जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए जो वहां पे फिट हो सकते थे, नियर अबाउट उनके एटॉमिक मास भी नियर अबाउट सेम थे, उनका वॉल्यूम भी सेम था, उनकी डेंसिटी भी सेम थी, और उनका जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो भी क्या था, सेम। सो मेंडलीव सेज द गैप दैट इज प्रेजेंट बिलो द एल्यूमिनियम इज नोन एज एका एल्यूमिनियम, इट इज नोन एज एका। एका मींस द फर्स्ट वन, एका एल्यूमिनियम। एका is a Sanskrit word. Eka means the first one. After that silicon, Eka, silicon. Clear? Eka aluminum after discovery, denoted by the symbol gallium, that is Ga, and Eka silicon represent to germanium, that is Ge. तो Ga actually it is Eka aluminum, that is gallium, and Ge that is germanium, that is Eka silicon। और जो प्रॉपर्टीज Eka aluminum की मेंडलीव ने रिप्रेजेंट करी थी कि ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये एटॉमिक मास होगा, जो प्रेडिक्ट किया था, वो प्रेडिक्ट किया हुआ एटॉमिक मास नियर अबाउट सेम था गैलियम के एटॉमिक मास से, उसकी डेंसिटी से, और उसके जो ऑक्साइड्स थे वो भी नेचर क्या थे, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट बैठ रहे थे। क्लियर? सो ये उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि जो उन्होंने गैप्स करे, उस गैप्स में जो एलिमेंट्स रखे वो एलिमेंट्स बाद में नेचर में डिस्कवर्ड भी हुए। मींस फ्यूचर की प्लानिंग पहले से है, फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, क्लियर, उसका एटॉमिक मास ये रहेगा, तो वो किस तरीके से अरेंज हो सकता है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। सेकंड अचीवमेंट ये भी है कि मेंडलीव्स की पीरियोडिक जो स्टार्टिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी, जब तक मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था, इनर्ट गैसेस के लिए इन्होंने प्लेस नहीं छोड़ा था, लेकिन इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी के बाद में जब इस टेबल में इनर्ट गैस की पुटिंग की बारी आई, तो एलिमेंट्स को आसानी से पुट किया गया कहां पे, एक अनदर वर्टिकल कॉलम में, और इस वर्टिकल कॉलम में हीलियम, नियॉन, ज़ीनॉन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, एंड रेडॉन, इन्होंने ये एलिमेंट्स पुट करे। क्लियर? इन एलिमेंट्स को एक प्लेस मिला, और कंप्लीट जो टेबल है उसमें कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्लियर? सो ये मेंडलीव्स के अचीवमेंट्स थे जो उनकी टेबल में बिना वो डिस्टरबेंस आ रहे हैं, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे अभी, जो गैप्स पुट करे उस गैप्स की जगह न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, वो पुट कर दिए गए, इनर्ट गैसेस वो इजीली पुट कर दी गई। जो ड्रॉबैक्स की अगर बात की जाए, हमने क्लास 10th में भी स्टडी किया था, डिफरेंट ड्रॉबैक्स थे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टी रिजेंबल्स करती है, फर्स्ट ग्रुप से भी रिजेंबल्स करती है, सेवंथ ग्रुप से भी, लेकिन फिर भी इसको कहां रखा गया है? फर्स्ट ग्रुप में। हाइड्रोजन बहुत सारी प्रॉपर्टी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसा डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना, सोडियम पोटेशियम के साथ में हाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी फ्लोरीन क्लोरीन की भी है, वो हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी है। क्लियर? जो टेंडेंसी फर्स्ट ग्रुप के सोडियम पोटेशियम की हैलोजेंस के साथ में बनाने की है, किसी और कंपाउंड के साथ बनाने की, वो हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी है। ठीक है? ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन की प्लेसमेंट सही नहीं है। सेकेंड, जो इनका अपना बेसिक फंडा था कि जितने भी एलिमेंट्स रखे गए वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखे गए। अगर ऐसा था तो उस समय तक आइसोटोप्स, आइसोबार्स की डिस्कवरी हो चुकी थी।
आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स होते हैं जब एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफर होते हैं। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। तो जितने भी आइसोटोप्स डिस्कवर हो चुके थे उन सबको इसमें प्लेस मिलना चाहिए था, स्थान मिलना चाहिए था। अगर किसी को भी यहाँ पे प्लेस नहीं मिला है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बात चली, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम एक ही एलिमेंट पुट करें, उन्होंने कहा था जितने भी एलिमेंट्स नीचे प्रेजेंट हैं अगर वो डिफरेंट एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने सबको पुट किया है। तो आइसोटोप्स उन्होंने पुट नहीं करी, सेकंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक क्या है? इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास पे पुट किया गया है, जबकि आयोडीन और टेल्यूरियम की अगर बात करें तो आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है और इसका 127.8 नियर अबाउट है। मींस हाई एटॉमिक मास वाला टेल्यूरियम पहले पुट किया गया और आयोडीन लोअर एटॉमिक मास वाले को बाद में पुट किया गया। क्यों? बिकॉज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिप्रेजेंट टू द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई ही पुट इट आयोडीन with fluorine, chlorine or bromine. There is the next drawback. In the same way, cobalt and nickel, atomic mass of cobalt is higher compared to nickel. Cobalt represent to near about 59 and nickel represent to 58 point something. So nickel का जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो निकल की प्लेटिनम और पैलेडियम जैसी प्रॉपर्टीज थी, इसलिए इसको बाद में रखा गया। क्लियर? और कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज रेनियम जैसी होती है, इसलिए उसको पहले रखा गया। क्लियर? तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी ट्रेंड चेंज हुआ, किसके बिहाफ पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ड्रॉबैक इज फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में कुछ जो एबी ग्रुप थे, एबी जो सब ग्रुप्स थे उसमें उन्होंने एलिमेंट्स रखा था सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, जिंक, कैडमियम, ये सबके सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने एक अलग से प्लेस बना रखा था, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहां पुट किया उन्होंने? फर्स्ट सेकंड ग्रुप में, मतलब मिडिल और बाकी कुछ और ग्रुप्स में भी उन्होंने प्लेसेस पे पुट किए, जबकि उन्होंने ट्रांजिशन मेटल्स के लिए एक अलग से कॉलम बना रखा था, दैट इज 8th कॉलम। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स, अचीवमेंट्स एंड मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।